First of all, thank you very much to spare a few minutes, few hours from us and share your experience or wisdom that you learn in your life. I am going uh, uh, to introduce our special guest. His name is Nashil Sh- Shetty, and he is working as a senior specialist in Hewlett Packard Enterprise, and he is associating from TISA since 2018, and he is a active member of Bangalore SHG, and he is right now as a coordinator of Bangalore SHG. Uh, Today we will talk on the topic which is conveyed over the WhatsApp or Telegram group, and we will talk how to deal with toxic people in life, because in our daily life toxic toxicity is become increasing day by day. N- so I would request Nishid Shetty ji, first of all, tell us about yourself. How was your childhood? How was your college life? And 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 how TISA changed their life, and how they are working in their current company, and how was their stammering journey. Thank you for the warm welcome. Harun. So, hi all, I am Nishil Shetty. So, I am born and brought up in a place called Udupi, that is 360 kilometers from Bangalore. I did my college in RBC in the Bangalore, and currently I am working in Hewlett Packard Enterprise as a senior specialist in the servers field. So I have almost 12 years of experience as of now, and I primarily code in Python and handle automation and QA in my company. So my journey with the KTT, KTSA, that began in 2012. I was seeing if there any way to improve the communication. How do you get rid of the fear for the interviews, as given you guys would have had earlier. So there I started the journey, and then I have been associated with the Bangalore SHG since lots of years. So initially, I used to just attend the calls, and then I started to host meetings, coordinate communication workshops. Got an opportunity to act in a theater and a play. One of our members over here, Animesh, he was doing a play. So we from SHG, 6 to 8 people, we joined in. He hosted a show in the Bookmai show, and then we ran the event over here. That was a very wonderful experience I had with SHG, because you have to push your boundaries, right? We are all here to see how much we can do and how much we can achieve. Um, then I got an opportunity to host the NC in 2018. So that has been a real wonderful experience to work with coordinators across India, work with people all over India. Around 1 to 25 people had come to the event. So taking care of the event, hosting short initiatives, and all of it. After that, I'm not very active in the Bangalore SRG. I go there every some month or so. We have another vibrant community that is
active here. Yeah, so that is a brief associated with the Indian Gambling Association. Thank you, Nishil. You provided your introduction in a very broad manner. Now we will move to our podcast topic. Now I will try to learn or try to understand from your side. What do you think people are toxic or their behavior are toxic? What do you think about it? Every person's life, there will be few people who will be of the toxic characters. But the problem happens when they are very closely associated with you. See, in short, I can give an example wherein you go on the road. If a dog barks at, will you bark back? It makes no sense to bark at the dog because it barked for some reason you don't, and you don't get to its equality telling it barked at me, I should go and bark at it. That won't make sense at all. But usually when it comes to humans, we are more emotional people. As soon as someone says something about us, we get very offended about it. But yeah, and we try to speak back, and the negativity just grows on from there. So the best way to handle with the toxic people is to avoid them or abandon them. But it so happens sometimes that is people who are very much we are attached to are the people who will start to say negative things or toxic things. And thing is to identify which is the toxic behavior and ignore it, or don't give it too much of the bow, as they say in Hindi. Thank you very much. My next question is, what do you think, what are the common behaviors and what are the signs of the toxic peoples? Yeah, so the toxic behavior is when you try to, but either they don't understand it, or even if they are in the repeat form. For instance, I had this incident earlier, a couple years ago. I was having an argument. So on that day, the argument was over. It got completed. I was just going on with my activities. So the toxic person used to always call me whenever we used to speak. Used to always remind me of that argument. So it is to see how agitated I get, or what anger I will portray, how will I react. So our expression is the point for them to see how we act. So initially I used to get offended, but slowly I also came to realize that it is all up to me how do I act or react for this. You see if how the person is affecting you. Is he bringing out the best in you, or are they bringing out the worst in you? So as soon as you get to know that relationship with a person, you immediately know whom to keep around you and whom you try to abandon or ignore. I won't say abandon as is, because there will be so many people in your friend circle, or or like the family also. And if it is very close, it is up to us to see how we can change their toxic behavior and then improve them. And it won't be immediate to change somebody's personality or the behavior. First of all, they should have the confidence in you, and you should have that patience and that time and effort to put over them. Thank you, निशिल जी। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में सागर जी भी हैं।
और मैं सागर जी से कहना चाहूँगा कि अगर पॉडकास्ट के दौरान वो निशील जी से कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि हम अपने इस पॉडकास्ट को मज़ीद इंटरेक्टिव बना सकें। मैं अब निशील जी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि टॉक्सिक पीपल्स आर द इंडिविजुअल हु engage the harmful behavior that has a negative impact on us or other people, whether physically or and emotionally. So what you think, how do toxic people affect others? Yeah. So, uh, this point that our emotion is entirely true. See how you react and act. So the emotional behavior they get out of you when they say a particular thing, or they put you in a now come to a society that is more open and will take care of people who are getting abused. You should always raise a concern. There is no point in taking up a physical beating or the emotional beating day after day. It so happens that sometimes you won't realize that it is an emotional headache that you are handling. If the person is emotionally harassing you, it is always better to first understand yourself that it is a harassment. It is not that they are concerned about you and then they are doing something that is helping you. So the earlier you understand that it is not help they are doing, but it is just that wicked, selfish, selfish pleasure that they get by hurting you. So better to avoid them, but if you are not able to avoid, you should have a way to handle them. Say a person who is trying to call you every day and keep on elaborating some content which makes no sense. In case you pick the call, they may start to harass you. So you should either keep the call short or inform them that you are occupied elsewhere and you will not be picking their call anymore. Thank you, Nishil ji. Uh, Many times people who toxic become because of their upbringing and their life experiences, and they don't know healthy ways to do to deal with their own stress, so they behave in ways that cause harm to other people. So what do you think, why do people become toxic? Yeah. So yeah, a couple of examples I have. One of my closer relative, he has a broken wedding. After that, he had become very much a toxic assess. Since the way he interacts with people, his outlook itself for everything is like is all bad. You don't get anything out of this. There is no pleasure at all. You feel happy when someone else is not doing good. When something bad is happening to them, they feel, yeah, yeah, it had to have happened because he was doing so and so things. That points from the fact that for you, something bad has happened. So you feel jealous that others are living a very good life and going along. So to help them, if they are very close, you will have to keep a positive attitude outlook and slowly try to bring them.
happiness or show them some positive outlook. May not be immediately possible to change them upfront or outright. So slow and steady over a period of few years, whenever they see there is a positive change of them being with you, and they get inspired by going to change. थैंक यू निशेल जी, आपने इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द रिलेशनशिप is harmful and the person refuses to change, so it may be best to distance ourselves from them. So what you think, how someone can deal with toxic people? Yeah, so this is a very important point actually. So in a relationship, what happens is until the relationship is mutual respect and happiness, one person should not be completely dependent on other person. So if that is the case, all of this uh, relationship or toxicity will come into the picture, wherein one person wants to hold on to it very hard, wherein the other person wants to keep it casual but is not so much attached. So the other person will always have a feeling that the counterpart is not giving his or her 100% into it, and negativity will go. It is better to openly speak about your expectations and see if those are being fulfilled. If not, then whatever the corrective actions a person has to do. And in case it is not possible, it is better to keep the air distance and then go away, because because the person who is toxic should also get a chance to self realize and come to a conclusion of how do they want to proceed with this person or not. If not, the relationship will always grow more and more toxic, and it won't help anyone else. थैंक यू निशिल जी। हमारी इस कन्वर्सेशन में टॉक्सिक टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे किए जाएं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी स्टैमरिंग जर्नी में एक्सेप्टेंस ने आपकी स्टैमरिंग को दूर करने में कैसे हेल्प की? हाँ, तो ये बात है। इनिशियली मैं जब टीसा में ज्वाइन किया हुआ था, तो सबसे पहली बात थी मुझे इंटरव्यू था एचपी में। तो मैं तब सोच रहा था कि हकलाने के बारे में मैं ओपनली उनसे बातचीत कर सकता हूँ, कि इसे नर्वसनेस बोल के इग्नोर करके उसे इंटरव्यू में अटेंड करवा दो। वो मेरा लास्ट दिनेश करके है हमारे बेंगलुरु एसएचजी में, वो जब कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनको मैंने पिंग किया था। बाद हम लोग देखते हैं तुम्हारे इंटरव्यू का क्या करना है कर, तो बातचीत कर रहे थे, कोई मतलब बातचीत क्या करने रहे। हाँ, एक्सेप्टेंस वाला चीज सुनाई दिया था। तो उसके बाद स्लोली स्टडीली मिली, जैसे जैसे कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स किए, टीसा किए, कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, पॉडकास्ट अटेंड किया, तो उसका अलग अलग मीनिंग अलग अलग जिंदगी के फेसेस में मिलता चला गया। पहली बात है कि तुम अपने आप से एक्सेप्ट करो कि तुम हकला रहे हो।
उसके बाद उसे ओपनली बताने में कोई बड़ी बात है। तो इंटरव्यू में क्या हुआ, मैंने एचआर से, तो एचआर ने बोला मैनेजर है, टेक्निकल राउंड इज ऑलरेडी ओवर, सो यू आर बीइंग चोजन फॉर दिस दैट आई एम। तो जगह पे जो इम्पोर्टेंस अपने लोग हैं जो लोग काम भी कर नहीं सकते, उनकी अलग इश्यूज होती है, कमिटमेंट की इश्यूज होती है, अंडरस्टैंडिंग द वर्क, डूइंग द जॉब, उसकी भी बहुत सारी इश्यूज होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे तो 100% फिट फिट होते हैं, लेकिन दैट कमिटमेंट जो जॉब करने के लिए चाहिए होता है वो उनके पास होता नहीं है। तो ये वाला चीज भी समझना इम्पोर्टेंट है, ताकि तुम पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो और यूजिंग दैट एक्सेप्टेंस मेक श्योर यू अचीव समथिंग। थैंक यू तो निशित जी। हारून, आपने मुझसे इतने सब सवाल किए, हम भी आपसे थोड़ा सवाल करना चाहते हैं। तो आपके जरूर। बारे में कुछ बताइए, आप कब से जी एसोसिएटेड हो जी टीसा में? जी, मैं भी अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम हारून रशीद है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और टीसा से जुड़े हुए लगभग मुझे 8 से 9 महीने हो गए हैं। और मैंने पहले कुछ स्पीच थेरेपी भी ली थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीच थेरेपी ले ली और उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरी स्टैमरिंग वापस आ गई। तो मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिस ग्राउंड या प्ले ग्राउंड के बारे में सोच रहा था कि जहां मैं अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर सकूं। तो एक स्टेमोराई ऐप है। वहाँ पर आप डिफरेंट पर्सन्स के साथ अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने उस पर्सन से पूछा कि वो अपनी स्पीच की प्रैक्टिस और कहाँ करता है, तो उसने मुझे टीसा के बारे में बताया। तो मैंने फिर उससे पूछा कि टीसा को ज्वाइन करने का क्या तरीका है। तो उसने बताया कि ये एक टीसा की वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टीसा को किस तरह से ज्वाइन करते हैं। जब मैंने टीसा की वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहाँ फिजिकल SHG की पूरी लिस्ट थी कि इंडिया के किस किस सिटी में SHGs कहाँ होते हैं। तो मैं पूरी वो लिस्ट देख के मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यहाँ तो ऑनलाइन यूजर्स के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उस लिस्ट के सबसे आखिर में एक ऑप्शन थी ऑनलाइन SHG की, और उसमें रोहिल जाल के और अफजल खान साहब का नंबर था। तो फिर मैंने दोनों पर्सन्स को कांटेक्ट किया। तो रोहिल जाल के सर ने बताया कि आप अपनी एक वीडियो मुझे सेंड कीजिए और मैं आपकी वीडियो को फिर इवेल्युएट करके बताऊंगा कि आप टीसा का पार्ट बन सकते हैं या नहीं। तो मैंने जब वीडियो सेंड की तो उसी दिन ही फिर मुझे रोहिल जाल के सर का रिप्लाई आ गया कि आप टीसा का पार्ट बन सकते हैं और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसमें आप दूसरे मेंबर्स से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको आप रीच आउट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उन्हीं दिनों फिर लॉन्च की एक वीकली मीटिंग चलती थी, जिसमें सचिन सर वीकली बेसिस पर आते थे और लोगों के जो डिफरेंट स्टैमरर्स होते थे उनके डाउट्स को
क्लियर करते थे। फिर उन्हीं दिनों फिर विकास रांगा जी ने वीकली लाउंज को फिर डेली लाउंज में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर उस डेली लाउंज में फिर मैं आना शुरू हो गया। मुझे सॉरी, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगा कि वो मेरे जैसे ही लोग थे। और मुझे भी लगा कि मैं दुनिया में अकेला स्टैमरर नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी भाई हैं मेरे। तो बस वो सिलसिला चलता रहा। और फिर बीच में विकास रांगा जी ने एक सेगमेंट ये शुरू किया कि जो भी टीसा के सीनियर मेंबर्स हैं उनको हम बुलाएंगे, उनके उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे और उनके प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंस से हम भी कुछ लेने की कोशिश करेंगे, कि उनसे कुछ विजडम लेने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी इस वीकनेस को अपनी अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया, और वो अपनी लाइफ में आजकल कैसे सक्सेसफुल है। तो उसी सिलसिले में मैं और आप एक दूसरे के सामने बैठे हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो ये मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बोले पहले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है करके, कब से और अब क्या, कहाँ पे जी जी। मैं पिछले 6 सालों काम से करते हैं? जी मैं पिछले 6 सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और एक टर्किश कंपनी है वेरी पार्क सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, तो आजकल मैं उनके साथ रिमोट बेसिस पर अटैच हूँ। आप मतलब 6 साल से भी एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, इस कंपनी के साथ मुझे 1 साल काम करते हुए हो गया है। और इससे पहले मैं टेलीकॉम सेक्टर में काम करता रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly, क्या काम है? आप कोडिंग वगैरह करते हो कि आप ये क्यूए करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैंडल हैंडल करते हो? नहीं, मेरा काम एज ए कोडर है। और मैं C# और एसक्यूएल सर्वर में मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, या आप कह लें कि मैं फुल फुल स्टैक डेवलपर हूँ। अरे सही बात है, सही बात है। हम ऑटोमेशन में हम काम करते हैं बहुत ज्यादा। सो मोर ऑन द पाइथन कोडिंग, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स बिल्डिंग, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडलिंग, द जेंकिंस यूआई। तो इन इन सब चीजों में हमारा होता है काम। तो इसीलिए आई वॉज इंटरेस्टेड कि आप कौन से थैंक वाले जो डोमेन में काम कर रहे हो। थैंक यू थैंक सही है। आपका और कोई और क्वेश्चन है या फिर हम नेक्स्ट वहाँ क्वेश्चन? आ, हाँ, एक था वहाँ पाकिस्तान में और ऐसे चीज है ये जैसे इंडिया में होते हैं? नहीं, पाकिस्तान में फिजिकल SHGs तो नहीं होती, लेकिन इसी तरह की टीसा की तरह की PSA है, पाकिस्तान स्टैमरिंग एसोसिएशन। तो वो ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन उसके फिजिकल मीटअप्स भी होते हैं, लेकिन वो 2 माह में 3 माह में एक जगह होते हैं। लेकिन जिस तरह से टीसा एक्टिव है उस तरह से वो एक्टिव नहीं है। नहीं, वो हो जाएगा। पहले तो इंडिया में भी कुछ नहीं था। ये सचिन सर ने करीब 20 साल पहले शायद इसे शुरुआत किया था अपने हरबटपुर में। उसके बाद इट स्प्रेड अक्रॉस बिहार, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। वैसे भी आप होंगे, आप वहाँ के सचिन सर के जैसे होंगे। यू विल बी द फाउंडर ऑफ द पीएसए और व्हाट एवर यू गिव द नेम। शुक्रिया, आपने और मेरी तारीफ की। PSA में काफ़ी पहले से है, तो वो उसमें काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी लोगों की
जिंदगियों में आसानी लेकर आऊं, और वो जो अपनी स्टैमरिंग को लेकर एक ट्रॉमा से गुजर रही हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रही हैं, तो मैं उनकी जिंदगी में आसानियां लाऊं, उनकी जिंदगी में खुशियां लाऊं, ताकि वो भी एक आम इंसान की तरह, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह वो भी अच्छा बोल सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। सही बात है। आपका कोई और क्वेश्चन है, या फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें? नहीं, अगर कोई और है मैं बात में आपसे पूछ लूंगा। ओके। ओके, तो आप क्या समझते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में नेटवर्किंग की क्या इम्पोर्टेंस है, कि एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में हमें प्रोफेशनल एडवांस अपने कैरियर में प्रोफेशनल हाँ, एडवांसमेंट में नेटवर्किंग कितनी हेल्प कर सकती है? आपको कोई वहां से रेफरल करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो पहले अपना सीवी अपलोड करते हो, कैसे वो इंटरव्यूअर और एचआर क्या मैनेजर आपसे विश्वास करके आपको ऑफर दे, ये पहली बात हो जाती है। क्योंकि इंटरव्यू में और ये भी श्योर होता नहीं कि वो ऑफर को उठा के वहां पे चले जाओगे करके। चीज होती है, देर इज अ पर्सन जो आपको जानता हो सबसे पहले, जो जानता है आप। तो ये वाला रेफरल के लिए आपको नेटवर्किंग करना सबसे जरूरी, क्योंकि नेटवर्किंग से ही होता है कि आपके आपके कनेक्शंस को इम्प्रूव करते हो। आपके कनेक्शंस आपकी रेफरल अपनी कंपनी में करवा देते हैं। यूजुअली कनेक्शंस कैसे बढ़ते हैं, जब आप अपने गांव से यहाँ शहर में आते हो काम करने के लिए, कोई और गांव से हो, वो आसानी से कनेक्शन हो जाता है। उसके ऊपर हो गया आपके स्कूल, आपके कॉलेज, जो आपके साथ पले बड़े हुए हो, उनके साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। ये कनेक्शन को आप जॉब अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा जैसे हमारा एसएचजी मीटिंग्स हुआ, टीसा हुआ, या यहाँ पे हमारे स्किल्स को शोकेस करके आप अपने कनेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे बैंगलोर एसएचजी में भी ऐसे बहुत इंस्टेंसेस है, जब ओपनिंग्स हो तो रेफरल्स वहाँ पे पोस्ट किया जाता है, बोल के कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए, बस आपका इंटरव्यू हो जाता है। हैदराबाद एसएचजी में भी जब हम गए थे कम्युनिकेशन वर्कशॉप के लिए, उसका भी एक एग्जांपल था। एसएचजी वाले ने अपने फेलो एसएचजी मेंबर को अपने कंपनी में रेफरल किया था, मतलब अपने फ्रेंड की कंपनी में, वहां से उनका जॉब हो गया। एंड आफ्टर एक साल के बाद वो कंपनी के एचआर उनसे आके बोले, ही इज अ एक्सेलेंट एम्प्लॉय जो आपने रेफर किया था। तो ये सब कैसे होता है, जस्ट कनेक्शन बनाने से ही होता है। तो कनेक्शन बनाना इन कॉर्पोरेट फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चेंज करना एक बात, even inside the company to grow, you need to know who are your contacts, who are your partners, who are your upstream partners, आपसे ऊपर कौन कौन है, उनके साथ आपका कनेक्शंस कैसा है। तो ये सब बहुत जरूरी चीज है। थैंक यू निशिल जी। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, और मैं आपसे दोबारा से ये सवाल करना चाहूँगा कि हम एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और उसमें हम डिफरेंट टीम्स में काम करते हैं,
और एक मैनेजर के नीचे काफ़ी लोग उसकी टीम में काम करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे बॉस के साथ जिसका एक टॉक्सिक बिहेवियर है उसके साथ हम कैसे डील करें, और उसके साथ किस तरह से डील करें कि हम अपने कैरियर में आगे भी बढ़ सके? पता नहीं अच्छा एक्सपीरियंस है कि नहीं, मुझे जो भी मैनेजर्स मिले हैं आज तक, तीन मैनेजर्स मेरे थे। पहला था क्षितेश शर्मा, एचपी में। वो उसके साथ में 6 साल, 6.5 years मैंने काम किया। उसके बाद मैंने कंपनी चेंज किया, डेल टेक्नोलॉजीज में था। कपल ईयर्स आई वर्क। आशा करके एक थी मेरी पीएम, उसके साथ मैंने काम किया। मैं फिर वापस एचपी में आया। लास्ट 3 year से एक सुधाकरण कर्माकरण करके है, उसके अंडर में काम कर रहा हूँ। तो सब मैनेजर्स अच्छे वाले ही थे। एक दो बंदे तो बहुत इंस्पायरिंग भी थे, वो अपना काम बहुत अच्छे से करते थे, फैमिली के लिए इम्पोर्टेंस देते थे हम लोग। बट आई हैव सीन पीपल हु आर मोर टॉक्सिक। मेरे फ्रेंड्स या कोलीग्स के जो भी पीएम्स हैं, वो लोग उनके साथ कैसे बर्ताव कर रहे थे, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, तो ये सब है से। तो उसमें दो कंडीशंस हुए हैं एज आई ऑब्जर्व। एक तो कि सबसे आसान जो तरीका है, सिंस यू आर रिफ्लेक्शन टू एनीवन एबव, सीनियर मैनेजमेंट हो गया, तो योर बॉस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन यू एंड, तो वो जो बात करेगा आपके बारे में, दैट इज व्हाट इट इज। वो जो आपके बारे में रिकॉर्ड्स में जाके लिखेगा, इट इज व्हाट इट इज। तो इफ योर मैनेजर इज वेरी टॉक्सिक, इट इज बेटर टू चेंज, इधर सी इनसाइड द कंपनी आप मैनेजर को चेंज कर सकते हैं, नॉट गो आउट ऑफ द कंपनी। एक और चीज है, यू गो एंड कंप्लेन टू योर हायर अथॉरिटी, ऐसा ऐसा है करके, ताकि मैनेजर के ऊपर एक्शन। तो मेरे एक कजिन की कंपनी में क्या हुआ, शी स्टार्टेड अप्लाई एयरपोर्ट, तो उसके 3 रेसिडेंट ने मेरा मैनेजर बहुत बेकार है। सॉरी, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया और मैं मीटिंग से थोड़ी देर के ओ, लिए ओके। चला गया था। तो अगर आप अपनी कन्वर्सेशन में अगर अपनी बात कर रहे थे तो आप कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपका बात ख़त्म हो गई है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हाँ तरफ हाँ, बढ़ते हैं। ये, हाँ ओ, हाँ, बात अच्छा। मेरी खत्म हो गई। ओके ओके। हम ह- हम जो हैं वो एक पर्सनल लाइफ भी गुजार रहे होते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप भी एक मैरिड पर्सन होंगे। और हम अगर अपने बच्चों के साथ अगर लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो होता ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो बड़े इम्पेशेंट किस्म के होते हैं, और वो बाज़ औक़ात जो वो काम करते हैं उसका उसका इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं, और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो वो काम कर रहे हैं उससे कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हमारा कोई
बच्चा, हमारा हमारा या हमारे भाई का या हमारी फैमिली में कोई भी बच्चा टॉक्सिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम उस बच्चे से किस तरह से डील कर सकते हैं? हाँ मैं हूँ, बट दिस में भी सीख रहा हूँ। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है बच्चों में, वो हमें देख के उसे बहुत, हाँ। हम्म। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग बैक। मैं कंटिन्यू कर, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप उसे हमेशा अच्छा राह दिखाएं। अगर वो कुछ गलत तरीके से करवाना पड़ेगा, अगर गाली बक के कि एक दो थोड़ा पनिशमेंट कुछ ऐसा। लेकिन जब वो बच्चे होते हैं आगे जाके अगर हम उसे कंटिन्यू करने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो द टॉक्सिक नेचर हमेशा इंक्रीज होता है, चलता है। उनको पता भी नहीं, ओवरटेक हो रहा है। ओके। अ, हम अपनी लाइफ में ये देखते हैं कि अगर हम किसी पर्सन से कोई मिस्टेक कोई कर देता है और अगर हम उसको माफ़ कर देते हैं, तो वो उस फॉरगिवनेस को एक वीकनेस के तौर पर लेता है कि इस पर्सन से ये सिचुएशन हल नहीं हुई, तो इसने मुझे जो है कहते माफ़ कर दिया। तो आप क्या क्या समझते हैं कि अगर हमारे साथ कोई टॉक्सिक बिहेवियर शो करता है और अगर हम उसे फॉरगिव कर देते हैं, तो ये क्या मसले का हल है, या आप इसे किस तरह से देखते हैं कि टॉक्सिक बिहेवियर अगर कोई शो करता है और अगर हम उसे माफ़ कर देते हैं तो ये बिहेवियर ठीक है या नहीं, या उस के टॉक्सिक बिहेवियर हाँ, को हम किस तरह से ऑफसेट कर सकते हैं? ये डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग है कि फॉरगिवनेस इज फॉर यू। फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज होती है ताकि यू डोंट बर्न इनसाइड यू एंड देन कैरी दैट पॉइजन एवरीवेयर यू गो। तो यूजुअली क्या होता है, इफ यू होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट एनीवन, तो पहले वो आपको चलाता है, उसके बाद आप वो आग को किसी और पे थोपने की प्रयास करते हैं। तो forgiving is a person is an option that you keep to keep yourself happy, but हाँ, you should always remember कि ऐसा आगे ना गलती हो, and you should ensure you cut the relationship or that business, that whatever you were doing with him, ताकि ऐसी गलती दोबारा फिर से ना हो, एंड यू डोंट गेट दैट इन मोड की है तो मुझे फिर से माफ करो, तो वो फिर से करता है, तो ऐसा वाला लूप में चलेगा। तो हाँ, समझ लेंगे इसको हम ऐसे ही फिर से कर सकते हैं, वो हमें माफ भी कर देगा, हम करते रहेंगे। So there is a big difference between forgiving due to weakness and forgiving due to the strength. So usually आप जब देखोगे, अगर माँ अपने बच्चे को थोड़ा डांटती है, it will be only for that instance, for that wrong thing that the kid did. उसे दो
गाली पड़ती है, तो उनके दिमाग में होता है, तो हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए, पर देना चाहिए। थैंक यू निशिल जी। मैं आपसे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन दो क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में करना चाहूँगा कि टीसा में जो न्यू PWS हैं, जो इस साल या कुछ महीने पहले आए हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी स्टैमरिंग को किस तरह से ले, और किस तरह से वो एक स्टैमर पर्सन से एक फ्लुएंट पर्सन बन सकते हैं? हाँ, तो देर आर कपल थिंग्स इन दिस। एक चीज होती है व्हेन यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल। फ्लुएंसी एक अलग चीज होती है। इफ देर आर 100 वर्ड्स यू स्पीक, आप अगर उसमें 15 वर्ड में हटला रहे हैं, तो हम क्या करें? हम एक दिन में 100 वर्ड्स ही बोल दे और हैप्पी हो जाए? नहीं, ऐसे नहीं। आप ट्राई करो, अब ज्यादा बातचीत करने की ट्राई करो, 1000 वर्ड्स बोलो, अराउंड 700-800 वर्ड्स में ठीक बोलो, 200-300 वर्ड में हाथ लाओ, तो इट इज फाइन। as long as you feel free to keep your points spread, as long as you are able to achieve your goals, आपको जो काम करना है, आपके जो आइडियाज है, द वे यू वांट टू एक्सप्रेस, आप इस जिंदगी में आ रहे हो, 80 साल जी रहे हो, तो समथिंग यू वांट टू एक्सप्रेस, यू वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, आप स्टॉप you from doing any of this. There will be some issues. You won't be able to speak 100 words at a time. तो उसे तो थोड़ी थोड़ी धीरे से you can improve. How you can improve is you should keep attending SHGs. So ये इंडियन ट्रैवलिंग एसोसिएशन का अच्छा इनिशिएटिव है कि दे कीप पॉडकास्ट ऑनलाइन, दे होस्ट मीटिंग्स ऑफलाइन। तो यूजुअली क्या होता है, ऑनलाइन में पीपल बिकम मोर कंफर्टेबल ओवर टाइम, क्योंकि उनके कन्फाइंड स्पेस होता है। यू नो कि एक स्क्रीन है, उसके अंदर ही यू नीड टू स्पीक। ऑफलाइन में ऐसा नहीं, यू डोंट नो कौन कहाँ से, हाउ यू आर इवन स्पीकिंग, तो वो एक अलग फंडा होता है। सो न्यू जॉइनिस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट पीपल इन वर्कशॉप हो गया, एजेंसी हो गया, randomly and speak, so that you get meeting new people again and again as a habit. अगलाने का एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, जब आप एक बंदे से रोज बातचीत कर रहे होते हो, तो उनके साथ अकलाना बहुत कम हो जाता है, तो यू डोंट गेट दैट फीलिंग अगेन। तो नए लोगों से जब बातचीत करते हो तो फीलिंग आ जाता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। और things will improve. Always look forward for good things. Yeah, that is थैंक यू। about. थैंक यू निशिल जी। मेरा आपसे अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप 2018 से टीसा का पार्ट हैं, और आप बेंगलोर SHG के भी एक्टिव मेंबर हैं, और उसके आप कोऑर्डिनेटर वो हैं। एक करेक्शन है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही? कैन यू हेयर मी? आई एम ऑडिबल? आई, एक करेक्शन में आपकी आवाज़ दो मेरे तक नहीं पहुंच रही दो क्या? हजार मुझे 12 साल हो। यस, हर ओके। ओके। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इतने चैट अरसे में से, पहले करता हूँ।
ओके, मुझे आपका मैसेज मिल गया है। मेरी तरफ कुछ नेटवर्क का इशू है, तो मैं इसके लिए आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप इतने अरसे से टीसा के एक्टिव मेंबर हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि टीसा के ऑपरेशंस में या टीसा की एक्टिविटीज़ में आप मज़ीद कुछ बेहतरी लाने के लिए आपके माइंड में कुछ ऐसे प्लान्स हैं? हाँ, तो मैं 12 साल से associated हूँ, बड़ी पिक्चर्स गिवन मी इमेंसली। तो आगे जाके भी टीसा के लिए जैसे हो मैं निशील जी, आर यू देयर? कैन यू हेयर मी? हेलो। यस निशील जी, आई कैन हियर यू। अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन दोबारा करना चाहूँगा कि आपके टीसा में नए मेंबर्स के आने के लिए कोई फ्यूचर प्लान्स हैं कि किस तरह आप क्या समझते हैं कि टीसा के जो करंट ऑपरेशंस हैं उसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है ताकि आने वाले लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ हो सके? हाँ, तो मैंने आजकल जो हो रहा है आईसी इनवाइट्स बाई विकास रंगा, सचिन सर, हरीश, तो सब लोग भी नए नए इनिशिएटिव्स के साथ आ रहे हैं। आई हैव विद अफजल। तो हाउ डू वी अट्रैक्ट न्यू मेंबर्स, ये एक चीज है। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, इंस्टाग्राम हैंडल्स हो गए, हाउ डू यू रीच मोर एंड मोर पीपल इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो यूजुअली क्या होता है, सबसे बड़ी बात और अनफॉर्चुनेट बात क्या होती है, जिन्हें टीसा की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको पता भी नहीं होता कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है करके। तो वो अपने आप से ये झेल रहे होते हैं, उनको दे डोंट नो कि ऐसा एक आउटलेट है जहाँ पे उनकी हेल्प हो सकती है, उनकी बातें कोई सुनेगा, इमोशनल बर्डन हल्का हो जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट्स इन पेपर एंड मैगजीन्स, फॉर व्हाट्सएप एड्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स। आप भी आजकल आजकल के नौजवान इंस्टाग्राम में एक्टिव है, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। सो हाउ डू वी मेक आवर वीडियोस और आवर इंफॉर्मेशन स्प्रेड टू देम, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और एक और चीज होती है कि जो भी आते हैं पहले एक्सपेक्टेशन से जॉब, इट इज यस मतलब इनिशियल थिंग इज हाउ डू यू कम्युनिकेट, ये वाला चीज, हाउ डू यू इन्फॉर्म टू द न्यू कमर्स इफेक्टिवली, उसके बाद उसके बारे में भी है। और इस साल का एनसी जयपुर में होगा होपफुली, एंड हाउ डू वी coordinate that, how can we contribute for that is what we have to see. हाँ, थैंक यू निशील शेट्टी जी। आपने 1 घंटा हमारे साथ गुजारा और एक डिफरेंट टॉपिक, एक डिफ़िकल्ट टॉपिक कि हम टॉक्सिक पीपल्स के
के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं या करना चाहिए। तो वो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की, और अपने वैल्यूएबल थॉट्स से अपनी विजडम हमारे सामने रखी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपने इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना है या मेरे बारे में कुछ कहना है, तो आप कह सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। आप टाइम 6:30 से पहले ही आपने मुझे हाइपर लिंक सेंड कर दिया था मीटिंग के लिए, ज्वाइन करने, बातचीत करके। सो थैंक यू फॉर होस्टिंग द पॉडकास्ट एंड होप यू कंटिन्यू टू डू दिस, अरुण। जी ज़रूर। सबसे आखिर में मैं आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा कि मेरी तरफ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था, और आपको अपनी बात को डिस्कनेक्ट करके मेरे आने का वेट करना पड़ा। तो मैं इस सिलसिले में आपसे माज़रत चाहूँगा। नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल। ओके सर। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे दोबारा भी किसी और टॉपिक को लेकर आपसे एक और पॉडकास्ट भी बहुत जल्द ही करूँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू, यू टू। हैव अ नाइस डे। ओके।